To start with the greatest name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent, whose blessings are unbounded, whose being is eternal, and whose worship is all praise. I am Qadr Khalid from the semester 6 morning, and today I am here to present a law mood role play presentation. First of all, I would like to call Aslam Bey for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। Now I would like to call Taimur for the Naat Rasool Maqbool sallallahu alaihi wasallam. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया, झुकाओ नज़रें बेचाहों पल के अदब का लाम खाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन जिए तेरा माया। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन जिए तेरा माया। ज़हे मुक़द्दर फ़िज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रश ताहर्श गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे किसका नाम आया। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे किसका नाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल
कदम कदम पर ये राय हक है, संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। Jazakallah. Today we all are gathered here for the law moot court roll. Now moving towards the main event. Now it's time to call upon our respectable judges for today's event. I would like to invite Bini Shehbaz from 10th semester and Irtiza Arshad from 8th semester to please come over the stage to judge our today's law moot court roll. The proceedings start here. Your Honor, members of the jury, my name is Amina Bukhari, and I represent the prosecution in this case along with my fellow council members Shafqat and Fahad. Your Honor, this is a case about a man who refused to take no for an answer, a man who couldn't control his anger, and a man who was caught red-handed with no other possible defenses. On 20th July 2021, a heinous crime was committed. The victim Zoya Mahmood was wounded by the accused Aslam Beg with knife, and even that could not satisfy him. He further continued to behead her. Yes, Honor, the victim was executed by the accused in his house. In fundamental rights, the right of life has a greater importance in itself. The right to life is ensured in Article 9 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The article states that no person shall be deprived of life or liberty. Your Honor, today the prosecution will prove beyond a reasonable doubt that Aslam Beg is guilty, and I believe your good office will provide relief to the victim's family who suffered a huge loss. Now, Fahad will continue with the background of the case. Yeah, sure. I am Fahad Mirza, representing prosecution on behalf of my counsel. I am here to present the background and facts of the Zoya murder. The victim, Zoya Mahmood, daughter of Salim Mahmood, was the age of 27 when she was murdered, and not only brutally tortured, but mercilessly beheaded. Zoya belonged to a prestigious family. Salim Mahmood, the father of Zoya Mahmood, is a former diplomat. The accused Aslam Beg is 27 years old, son of Atif Beg, who is a leading businessman of the country. Aslam Beg looked after the family business, and he was also a therapist. Presenting to the court the background of the case. Zoya and Aslam were actually very close friends. On the day of 18th July,
Zoya went to the Aslam place around 10 p.m. The next day, at 5 p.m., Zoya called Sarim to tell him that she is going to Lahore with her friends for 2 days. On July 20th, around 2 p.m., Sarim Mahmood received a call from accused that Zoya was not with him, which made Sarim Mahmood anxious. Around 9 of the 20th July, police went to Aslam's place. Uh, Police went to accused place and called the father of victim, Sarim Mahmood, to inform him the death of his daughter. At 10 p.m., FIR was registered against the accused. Can I have the FIR, please? Let's move to the scenario of the case. When the police went to the place of murder, that is Aslam's residence, Sector 74, Street 16, in Islamabad. The therapy worker, Miss Isha, and security in charge, Mr. Anis, were already present there. Aslam Beg and Anis were arrested at once by police. Aslam Beg kept Zoya Mahmood captive for 3 days. Zoya was brutally tortured. Um, the forensic report evidence, which will be represented by the member of the prosecution, Shafkat, after me, um, clearly tells the clearly tells that Zoya Mahmood had wounds and scars on her body. She was also beheaded. After that, all the evidences will be led by Advocate Shafkat. May I proceed, Honorable Judge? Yes. Thank you so much. First of all, I would like to seek the permission to record the statement of the complainant of the victim to further proceed the case. Permission is granted. मेरा नाम सारिक महमूद है भाई इस्माइल अजूबी 19 जुलाई 2021 को जब मैं 10 बजे सुबह घर से निकला बकरा मंडी के लिए बकरा खरीदने तो मैं खरीद कर वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा घर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैंने उसके दोस्तों में रब्ता किया तो उसकी शाम 5 बजे मुझे कॉल आई कि पापा मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं आ रही हूँ 2 दिन तक वापस। इसकी वजह से मैं थोड़ा परेशानी से फिर अगले दिन 20 जुलाई को दिन 2 बजे असलम की कॉल आई, कहते हैं अंकल जोया मेरे साथ हुए। मैं परेशान हो गया क्योंकि वो उसका कॉमन फ्रेंड था और उसका घर आना जाना था, तो वो उसी के साथ होती थी क्योंकि वो एक ऑफिस में उसके साथ होती थी। मेन जो था कि उसके फैमिली रिलेशन के वजह से तो फिर हमने ढूंढने की तलाश की, लेकिन मेरी बेटी का नंबर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद तकरीबन 9 के आसपास पुलिस की कॉल आती है मुझे कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया, आपको साथ पुलिस स्टेशन मैं पुलिस स्टेशन गया। वहाँ में मुझे
असलम बेरी की घर ले गए जहाँ पे 7th फ्लोर पे एक रूम में हम देखे। जैसा कि सरबान आपने कंप्लेंट सुनी कंप्लेनेंट की सारिम महमूद जो कि विक्टिम का फादर है, तो उसकी कंप्लेंट के बाद आई वुड लाइक के यू प्लीज चार्ज फ्रेम दी चार्जेस अंडर दिस सेक्शन 164 का बयान रिकॉर्ड करेंगे। I have been Shahbaz Aman, Session Judge, District and Session Courts, COSAR, charge Aslam Beg, son of Atif Beg, under Section 300 of Pakistan Penal Code with Qatl-e-Amd, under Section 340 of Pakistan Penal Code with wrongful confinement, under Section 364 of Pakistan Penal Code with kidnapping or abducting in order to murder, on Thursday dated 27/21 at 10 p.m. Accused, do you plead guilty? Call the witness and start the proceeding. Sure. Honorable judges, we have the circumstantial evidences. Before going to the witnesses, I would like to call the first witness and मैं एक चीज़ ज़रूर आपकी सबमिशन में लाना चाहूँगा कि हमारा एक पहला जो गवाह है अनीस दुरानी, he was captured from the accurate scene from the occurrence, और जो कि वहाँ पे घर में मुलाजिम था एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज, बहुत सालों से वो वहाँ पे काम कर रहा था। He was arrested on the spot, और जो कि एक हमारा circumstantial evidence भी है। और before analyzing, before going to the witness, मैं एक चीज़ ज़रूर अदालत की सबमिशन में लाना चाहूँगा कि वो हमारा एक क्योंकि उसका अबेटमेंट का इसके अंदर रोल है इस केस के अंदर, तो उसको हम एज अ सुल्तानी गवाह पेश कर रहे हैं और एज अ पैरडाउन पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उसे बुलाऊं, आई वुड लाइक टू रीड द आर्टिकल 16 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर, which state that which defines the accomplice. Accomplice is defined as shall be competent witness against an accused except in the case of offence punishable with death, and a conviction is not legal merely because it proceeds upon the uncorporated testimony of an accomplice. इसी के साथ अगर हम CRPC के सेक्शन को देखें कि जो डील करता है accomplice के साथ, that is the section 338, power to grant or tender pardon. At any time before the judgment is passed, the High Court or the Court of Session trying the case may with the view of obtaining on the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any such offence, tender or order the prosecution in the district to tender a pardon on the same condition to such person, provided that no person shall be tendered pardon who is involved in offence relating to hurt or qatl without permission of the victim, or the case may be of heirs of the victim. So विटनेस को बुलाने के लिए, पैडाउन के विटनेस को बुलाने के लिए, सुल्तानी गवाह को बुलाने के लिए मैं ऑनरेबल जजेस से वली की कॉन्सेंट के लिए उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 338 ऑफ द CRPC. Yes, please. मैं इसलिए बात को ज़्यादा देता हूँ कि वहाँ के अजैबा पेश जैसा कि आपने वली की स्टेटमेंट सुनी, he has the consent, he has given the consent कि अनीस दुरानी एज ए सुल्तानी गवाह पेश हो सकता है, जैसे कि सेक्शन 338 ऑफ CRPC की डिमांड है कि कत्ल या हर्ट के केस में कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी, विक्टिम्स पार्टी होना लाजमी है। तो आपने स्टेटमेंट सुन ली, तो इसके साथ ही मैं गवाह नंबर 1 अनीस दुरानी को अदालत के सामने पेश करना चाहूँगा कि जिसने 161 के अंदर पुलिस चालान के अंदर जिसकी स्टेटमेंट भी आपके पास रिकॉर्ड है, तो काइंडली परमिट कीजिएगा। Permission is granted.
रावलपिंडी गाजियाबाद का रहने वाला। तो उसी केस में जब 18 तारीख को जो ये जोया थी वो रात 10 बजे आई है और तकरीबन 19 तारीख को रात के तकरीबन 2-2:30 बजे में वो उसने भागने की कोशिश की है, लेकिन साथ में असम बैग में उसे वापस लेके गए। फिर तकरीबन 20 तारीख को 8 के आसपास फिर इशा आई है और फिर उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद तकरीबन 9-9:15 के आसपास फिर पुलिस आई है और मुझे पता चला कि इस तरह जोया का पता है और पुलिस को मुझे अरेस्ट कर लिया। आप कौन थे उस घर में? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज था, एज सिक्योरिटी गार्ड। तो कितने दिन तक वो कन्फाइंड थी उस घर में? तकरीबन 18 से 20 तारीख। तो जैसा कि आपने देखा भी है कि उन्होंने भागने की भी कोशिश की है, तो आपने किसी स्टेट अथॉरिटीज़ को बताने की कोशिश नहीं? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं लग रहा था, घरेलू मामला भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो मेरा काम ही उसकी मौका है ना कि उसका वो। Thank you, Honorable Judge. I have the legal petition number 513 of 2020 submitted before the Supreme Court की जो circumstantial evidence के ऊपर रोशनी डालती है और जो कि circumstantial evidence means the linkage जो कि uncorroborated evidence हो, चाहे कि वो एक witness की सूरत में हो, because we have no eyewitnesses of the case. Prosecution की तरफ से कोई eyewitness नहीं है. These are the circumstantial evidence जो कि हमारी तरफ से एक गवाह ने बताया, जो कि वादामाफ गवाह है इस केस का। Although he is charged under section 109 of the TPC, लेकिन उसके साथ वो एक गवाह है, सुल्तानी गवाह है। तो मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको अपनी इस केस के अंदर अपनी जजमेंट के अंदर कंसीडर कीजिएगा। इसी के साथ मैं गवाह नंबर 2 को इस वक्त विटनेस बॉक्स को बुलाना चाहूंगा कि जो उसके साथ थेरेपी वर्कर थी और उसके साथ काम करती थी और जो जाए बकुआ पे पहुंची थी ऑन द कॉल ऑफ द एक्यूज्ड असलम बेग। सो मैं आपसे परमिशन चाहता हूं कि विटनेस नंबर 2 को अलाउ किया जाए। परमिशन इज ग्रांटेड। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ऋषि तारिक है और मैं असलम बेग की कॉलीग थी, उसके साथ एज ए थेरेपिस्ट काम कर रही थी द हाफ फाउंडेशन में। हम 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। 20 जुलाई को 7:30 के अराउंड उसने मुझे कॉल की। उसकी टोन काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने अपना काम वाइंड अप किया और मैं उसके घर गई। वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद था, तो असलम बेग मुझे लेने आया और वो मुझे घर के 2nd फ्लोर पर ले गया। एंड जब मैं उधर रूम में गई तो वहाँ मैंने देखा कि एक लाश पड़ी है और उसका बिल्कुल सर कटा हुआ है, अलग फ्रॉम द बॉडी। तो मैं एकदम घबरा गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि ये कौन है और सीधा उसने मुझे कहा कि ये एविडेंस मूव करने की हेल्प करेंगे, जिसपे आई रिफ्यूज बिकॉज मैं वो देख के काफ़ी नर्वस हो गई थी। तो एंड ही स्टार्टेड बीइंग अब्यूजिव विद मी एज वेल, क्योंकि मैंने रिफ्यूज कर दिया था एविडेंस रिमूव करने के लिए। एंड उसी दौरान पुलिस आ गई थी। थैंक यू सो मच ऑनरेबल को। इसी के साथ मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर कुछ केस लाज हैं जो आपकी नजर करना चाहूंगा। All judicial evidence is either direct or circumstantial. By direct evidence is meant when the principal fact is attested directly by the witnesses, things or documents. To all other forms, the term circumstantial evidence is applied. The fundamental principle of universal application in cases dependent on the circumstantial evidence is that in order to justify the interfere of guilt, the implementing fact must be incompatible with the innocence of the accused or the guilt of any other person and incapable of explanation upon any other reasonable hypothesis than that of his
guilt. All types of circumstantial evidences are admissible when these evidences and the testimonies of the witnesses are uncorroborated. So, लेकिन अगर केस लॉज की बात करें ऑनरेबल कोर्ट, तो हमारे पास केस लॉज हैं शेर मोहम्मद वर्सेस राय एयर 1945 लाहौर 70 PID नंबर 1954 लाहौर 710। इसके अलावा केस है हमारे पास जाहिद हुसैन वर्सेस क्रॉन 1969 पिटीशन नंबर 338 ऑफ 1969, मोहम्मद नजीर वर्सेस मिसेस सायरा PID नंबर 1970 सुप्रीम कोर्ट 56। In circumstantial evidence, these case laws prove the admissibility of the circumstantial evidence in the court. इससे पहले कि मैं दूसरे evidences की तरफ जाऊं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप kindly उस काउंसिल को सुनें। Thank you so much. Now I request to the defense counsel to please come and proceed the case further. Yeah. Article 10A provides the fundamental right of fair trial. So, it is the fundamental right of the accused and my client that he should have a fair trial. So, अभी हम cross examination करेंगे. Yes, please. Yeah. First of all, I want to call prosecution witness 1. Anis Durrani. हाँ जी अनीस दुरानी, आप असलम बेग के घर से कितने अरसे में काम करते हैं? 3 साल से आप काम कर रहे हैं उस घर में। क्या कभी आपने उस लड़की को पहले उस घर में देखा? हाँ देखा। आपकी जॉब टाइमिंग्स क्या क्या है? कितने बजे आप आते हैं, कितने बजे जाते हैं? मैं तो ज्यादातर उधर ही होता हूँ। ज्यादा होते हैं मतलब आप 24 घंटे वहां पर काम करते हैं, ऐसे ही सोते नहीं है आप, खाना नहीं खाते? सोता भी हूँ। अच्छा सोते भी हैं आप, तो फिर आप सोते किस टाइम है? जिस टाइम नींद आती। जिस टाइम नींद आती है मतलब आपके मालिक आपको कुछ नहीं कहते कि आप जब मर्जी चाहे आए, जब मर्जी चाहे जाए, ऐसे ही? नहीं, वो कहते। लड़की किस तारीख को घर में आई थी? 18 तारीख। 18 तारीख को घर में, ठीक है। जबकि FIR में उसके वालिद कह रहे हैं कि 19 तारीख को सुबह वो घर में थी लेकिन रात को वो वहां पर नहीं थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 18 तारीख को वहां पर थी? वो आई थी, मैंने अपने आंखों से देखी। आपने अपने आंखों से देखी कि वो वहां आई थी। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपकी पे कितनी? 28,000। 28,000। और आप घर किस जगह पे? पिंडी राजा बाजार। आपके नाम से जाहिर होता है कि आप पठान कबीले से ताल्लुक रखते हैं, दुरानी नाम में याद है। हाँ जी है ना, है आप दुरानी पठान है मतलब। तो आपके कुछ फैमिली मेंबर्स KPK में भी रहते होंगे? रहते हैं वो अफगानिस्तान में भी रहते हैं। अफगानिस्तान में भी रहते हैं। तो राजा बाजार में आपके साथ कौन कौन रहता है? जी राजा बाजार में जो आपके घर है तो कौन कौन रहता है? अकेला रहता है। अकेले रहते हैं। तो घर वालों से कब मिलते हैं, मतलब कि आपको हफ्ते में छुट्टियां कितनी होती हैं? घर वालों से मेरे ताल्लुक अच्छा नहीं। I object, Your Honor. He is being personal with our witness. Objection overruled. अच्छा, तो आपके बाकी फैमिली मेंबर्स वो रहते हैं KPK में, कौन सी जगह पे? पेशावर में रहते हैं। तो पेशावर आप उनसे मिलते हैं, कोई नहीं मिलते? कभी कभी तो इंसान नहीं मिलते, कभी ईद पे, मतलब ईद वगैरह पे मिलते होंगे।
मतलब ईद पे तो इंसान मिलता ही है अपने रिश्तेदारों को जाके, आप ईद पे उसको मिलते होंगे जाके? कुछ वो मतलब मेरा कोई पता नहीं। मैं मोस्टली आप मिलते हैं वहाँ पर ईद पे? कभी कभी मतलब हो जाता है। मतलब आपको ईद की छुट्टी मिलती होती है? ईद की छुट्टी आपको मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है अगर मेरी मर्जी हो। हाँ मतलब मिलती है ना, मतलब आपकी मर्जी, जाहिर सी बात है, कौन कहेगा कि मैं छुट्टी नहीं करूंगा, आपको मतलब छुट्टी मिलती है। यहाँ पर आपने जिस डेट को मेंशन किया है, आप कह रहे हैं आपको ईद पे छुट्टी मिलती है, ऐसे ही है? नहीं, आपने कहा है कि आपको ईद पे छुट्टी मैं जब मिलती है। चाहूँ मुझे ईद पे छुट्टी मिल जाती है। वही मैं मतलब चाहूँ तो ईद पे छुट्टी मिलती है आपको, है ना? मेरी मर्जी होती है, मतलब जाऊँ ना जाऊँ। वही मतलब मिलती है आपको, आप चले जाते हैं मतलब वहाँ? नहीं जाता। जाहिर सी बात है, हर बंदा चाहता है छुट्टी तो होती है। नहीं ना, मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो मैं उधर ही रहना पसंद करता हूँ। मतलब आप वहाँ से तो चले जाते हो ना, वहाँ से चले जाते हो घर से, क्योंकि आपने अपने घर में रेस्ट करते हुए जो भी ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त जैसे कि कह रहे हैं कि वो ईद के दिन थे और मुलजिम जो है वो जो विटनेस है वो उस वक्त घर पे था। तो अगर आप उसकी विटनेस चेक करें तो वो राजा बाजार रावलपिंडी का रहने वाला है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों ट्विन सिटीज हैं। तो ईद से 2 या 3 दिन पहले उसके लिए वहाँ घर आना जाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और नॉर्मली यही होता है कि ईद से 2 दिन या 1 दिन पहले उसको किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर उसने वजीरिस्तान या अफगानिस्तान जाना होता तो शायद वो हफ्ता पहले जाता, लेकिन उसने राजा बाजार जाना था, ईद वहीं पे करनी थी। जैसा वो कह रहा है कि उसकी वहाँ घर वालों साथ नहीं लगती, तो ये कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किसने कहा कि आप यहाँ पे आगे एक्सप्लेनेशन दी? योर ऑनर, द कोर्ट हैज परमिटेड। थैंक यू सो मच अनीस दुरानी। थैंक यू। मैं कोर्ट से एग्जामिनेशन इन चीफ लेने की परमिशन चाहूँगा। गवाह नंबर 1 अनीस दुरानी, काइंडली रिक्वेस्ट को। अच्छा, तो अनीस दुरानी, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने आपसे पूछा कि आप वो ईद के दिन थे तो आपको छुट्टी क्यों नहीं मिली, काइंडली इसको थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। असल में मैं खुद छुट्टी नहीं करना चाहता था, मैं उधर ही आप खुद छुट्टी नहीं करना चाहते थे, ठीक होगा। मैं गवाह नंबर 2 ईशा तारिक की क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। जी ईशा तारिक। मैं असलम को 3 साल से जानती हूँ, हम कोलीग्स हैं। असलम बेग को आप 3 साल से जानती हैं, तो आपको असलम बेग ने कॉल करके बुलाया होगा? हाँ जी। तो आप जब आई मौका वारदात पे, जब पहुंची असलम बेग के घर, तो क्या आपने कत्ल होते हुए देखा? नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। लेकिन वहाँ जब मैं गई तो लाश पड़ी थी। क्या आपने कत्ल होते हुए देखा? लाश पड़ी थी। थैंक यू। पहले मैं अच्छा ईशा, कोर्ट को ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पे पहुँची तो एग्जैक्टली आपने क्या देखा? जब मैं वहाँ गई तो सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ रेडी बैठे था। असलम में आया और वो मुझे सेकंड फ्लोर पे ले गया। जब मैं रूम में गई तो आई सॉ डेड बॉडी जिसकी सर्जरी को बना हुआ था, और मैं एकदम पैनिक करके कि थोड़ा हमारी बहस भी हुई। उसने मुझे कहा कि एविडेंस रिमूव करने के लिए और जो जिसको मैंने विटनेस किया, तो मैंने एक पुलिस से यही लग रहा था कि वो एक लड़की है। मैं एक कोर्ट के नोटिस में ले आना चाहूँगा बात कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि हम जो हमारे विटनेसेस हैं वो आई विटनेसेस नहीं हैं। दीज आर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कि अगर पहले कुछ मैं प्रेजम्पशन की डिफेंस की तरफ आपको जब जाने से पहले मैं एक चीज़ जरूर कोर्ट के उसमें लाना चाहूँगा नोटिस में कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस
इसका मतलब अगर हमारे पास जब डिफेंस काउंसिल अब आर्ग्यू कर लेगी तो उसके बाद हम सीसीटीवी फुटेज की बात आएंगे। इसकी हमारे पास ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट है फ्रॉम द पंजाब जुडिशियल साइंस एजेंसी। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊं, मेरे लिए ये बताना कोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने पहले ही कहा था कि दीज आर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ये कहना कि उसने कत्ल होते उधर देखा या नहीं देखा, दिस इज इररिलेवेंट, क्योंकि अगर ये आई विटनेसेस होते तो फिर मेरे जो काबिल दोस्त हैं वो ये चीज को रेज कर सकते थे कि कत्ल होते देखा या नहीं देखा। जो कि बयान के अंदर गवाह नंबर 2 ईशा तारिक ने बताया है कि वो जब वहां पर पहुंची उसकी कॉल पर तो उसने उसको सबूत मिटाने के लिए हेल्प को कहा, जिस पर उसने रिफ्यूज कर दिया। तो शी इज नॉट द आई विटनेस, शी इज जस्ट द सर्कमस्टेंशियल विटनेस। और जो कि मैं उसका आप कोर्ट में उसका पहले भी बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। और इसके साथ में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बिफोर गोइंग टू द डिफेंस कि सबसे पहले 18 तारीख को जब विक्टिम उसके असलम बे के घर आती है तो 18 तारीख से लेकर 20 जुलाई तक वो वही रहती है, जो कि हमने सीसीटीवी फुटेज पेश करना है जिससे ये चीज़ साबित हो जाएगी कि वो 3 दिन तक उस घर में थी। वो विलफुली आई, लेकिन जो कि सीसीटीवी फुटेज नंबर 2 एंड सीसीटीवी फुटेज नंबर 3 इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगी कि उसको होस्टेज बनाया गया और उस वक्त उस घर में सिवाय 3 लोगों के और कोई नहीं था, सिक्योरिटी इंचार्ज, विक्टिम एंड एक्यूज। तो और जैसे कि यहाँ पे सुल्तानी गवाह की आपने स्टेटमेंट्स दी, उसने ये भी बात जरूर की कि वो 3 दिन बाहर बिल्कुल भी नहीं गए और वो वहां पर थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज से ये चीज हम आगे चल के प्रूव करेंगे। तो दीज आर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि जो लीड करते हैं कि अगर तो वहां घर पर कोई और नहीं था सिवाय सिक्योरिटी इंचार्ज और उन 2 लोगों के, तो फिर कत्ल किसने किया? कत्ल तो हुआ है बिकॉज वी हैव द डेथ रिपोर्ट ऑफ द विक्टिम। और इसके साथ ही जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है हमारी तरफ से, जो विटनेसेस ने गवाहियां दी हैं, उससे ये साबित होता है कि उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग थे और ईशा उसकी कॉल पे वहां पर पहुंची थी, जो कि हमारी गवाह नंबर 2 है। और इसके साथ साथ और जब इनके दरमियान तलब कलामी हुई तो पुलिस वहां मौके पर पहुंची, जो कि एक स्पाई इंफॉर्मेशन के ऊपर वहां पर उसने पुलिस ने छापा लगाया। और एक चीज और मैं जरूर कहूंगा कि ये जब पुलिस पहुंची तो ये 4 कैरेक्टर्स, ये 4 लोग वहां अक्रेंस पर मौजूद थे। तो आगे सीसीटीवी फुटेज में इंशाल्लाह ये चीजें हम क्लियर करेंगे। अप टू यू। थैंक यू सो मच। I want to share a case law with respect to Judy. Yes, please. In the case Hashim Qasim versus State 2017 SCMR 986, Fayaz Ahmed versus State 2017 SCMR 2026. So page number 8. There are chances of fabricating evidence in case that are based solely on circumstantial evidence. Therefore, the court in such cases should take extra care and caution to examine the evidence with pure judicial approach on strict legal standards to satisfy itself about its proof, probative value, and reliability. अभी प्रोसिक्यूशन काउंसिल के मेंबर्स कह रहे थे कि ये नहीं पता कि कत्ल किसने किया। उन्होंने अभी क्वेश्चन रेज किया है और ये खुद ही डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि इनको नहीं पता कि कत्ल किसने किया। ड्यूरिंग हिज आर्गुमेंट ही वाज सेइंग कि अगर उसने नहीं किया तो किसने किया है, लाइक ही डोंट नो हिमसेल्फ, ही इज नॉट इवन श्योर अबाउट दैट। एंड टू एस्टैब्लिश the guilt beyond reasonable doubt is the duty of the prosecution. I want to share a case law of that too with the respectable jury. It's on page number 9. Tilawat Hussain versus State 1972 SCMR 15. Gain of such facts and circumstances has to be completed to establish guilt of the accused person
beyond reasonable doubt and to make the plea of his being innocent incompatible with the weight of evidence against him. कोर्ट को मैं एक चीज जो कि हमारे पास जो मेमोज ऑफ रिकवरी हैं उसमें एक चीज है कि देयर हैज बीन यूज ऑफ नाइफ, एक चाकू है जिसका यूज हुआ है, जिसके फिंगरप्रिंट्स मैच हुए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट के अंदर। और इसके साथ मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देयर वाज द रिकवरी ऑफ द पिस्टल ऑफ 34 फ्रॉम द एक्यूज्ड, जो कि गवाह ने देखा है ईशा ने, क्योंकि उनकी तरफ कलामी हुई थी। और पुलिस के पहुंचने पर वो पिस्टल, चाकू और बाकी डेड बॉडी और वो शख्स वहां से रिकवर हुआ along with the two witnesses that we have submitted before the court. इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं मेडिको लीगल रिपोर्ट आपकी नजर करना चाहूंगा जो कि हमारी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट नंबर 11 के ऊपर है। थैंक यू सो मच। कोर्ट जजेस, आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की इंजरीज हैं, टोटल 6 इंजरीज हैं इसके अंदर, जो कि सिर्फ चाकू की हैं। सबसे पहले बॉडी के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे, और उसके बाद बॉटम राइट ऑफ द बॉडी, और एक लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉडी पे चाकू के निशानात हैं। और इसके साथ साथ जो कि बीहेडिशन का जो वो है, डिसेप्टेशन का जो है कि जहां पर गला काटा गया है, तो ये सिर्फ ये चाकू के साथ हुआ है, जो कि मेमोज ऑफ रिकवरी के अंदर मेंशन है और साथ आपके कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। एंड एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विच द आर्टिकल 164 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर डील्स विद द फोरेंसिक साइंसेस एंड द डिजिटल एविडेंसेस दैट आर इक्वली एडमिसिबल एज अदर टाइप ऑफ एविडेंसेस और विटनेसेस। इसी के साथ मैं जो वहां से मेमोज ऑफ रिकवरी के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, और जो पिस्टल का ताल्लुक है कि पिस्टल से एक गोली रिकवर हुई 34 की, जो कि चैम्बर के अंदर फंसी हुई थी, जिससे ये जाहिर होता है कि एक्यूज ने पहले पिस्टल से फायर करने की कोशिश की, जो कि नहीं चला, तो उसने फिर उसके अलावा बाद चाकू का इस्तेमाल किया, जो कि मेमोज ऑफ रिकवरी के अंदर मौजूद है। इसी के साथ मैं कोर्ट से परमिशन चाहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज जो कि मेमोज ऑफ रिकवरी के अंदर हैं, जो कि वहां पर पुलिस को मिली, मैं चाहूंगा कि आप अलाउ करें। और उससे पहले कि आप अलाउ करें, मैं कुछ केस लाल आपके सामने बताऊंगा कि जो सीसीटीवी फुटेज के साथ डील करते हैं। और सबसे पहले एक चीज होती है सीसीटीवी फुटेज, आई नो कि कोई भी फुटेज हो तो वो तब तक एडमिसिबल नहीं है तब तक वो उसकी ऑथेंटिकेशन ना हो किसी भी अप्रूव्ड पाकिस्तान की एजेंसी में। तो इसी के साथ मैं डॉक्यूमेंट नंबर 12 का हवाला दूंगा, जो कि हमारे फाइल के अंदर है, विच कंफर्म द सीसीटीवी फुटेज। मैं इसका जो कंटेंट है वो रीड आउट करना चाहूंगा। To the subject submitted by the Islamabad police official under the submission of sample form 671/2021 for checking the validity of CCTV footage labeled as 876EF received by the forensic officials dated on 28th July 2021. It is certified that under observations made in accordance with the approved legal framework, the corresponding CCTV footage has no ambiguity, tampering, and is found fit for any type of proceeding, either court or official. तो इसके साथ मैं कुछ केस लॉज बताऊंगा कि जो परमिट करते हैं द एडमिसिबिलिटी ऑफ द सीसीटीवी फुटेज को, और इसके साथ आर्टिकल 164 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर जो कि डिजिटल साइंसेस को एज ए एविडेंस अलाउ करता है। अगर आप आर्टिकल 59 के साथ आर्टिकल 59 ऑफ टीएसओ के साथ उसको पढ़ें, तो कुछ जजमेंट्स हैं जिनको मैं बताऊंगा। पीएटी नंबर 1988 सुप्रीम कोर्ट ऑफ 109, PID Lahore 2013 of the 213 of PID number 2017, PHA 2008 कराची 305। इसी के साथ मैं कोर्ट से परमिशन चाहूंगा कि काइंडली परमिट दी काउंसिल प्रोसिक्यूशन काउंसिल टू प्ले द सीसीटीवी फुटेज व्हिच वाज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑपरेंट्स एंड एज वेल एज द पार्ट ऑफ द मेमोज ऑफ रिकवरी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सो मच। I request कि CCTV footage number 1
जो कि 18 जुलाई द एंट्रेंस ऑफ द विक्टिम। मैं इससे पहले कि हम अगली वीडियो की तरफ जाएं, ये 18 जुलाई रात 10 बजे की वीडियो है कि जब विक्टिम जो है एक्यूज के घर आती है। एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि इनके दरमियान इनके फैमिली रिलेशंस थे, दे बोथ फॉर द फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो विलफुल कन्फाइनमेंट का एक फैक्टर है वो हुआ है। एक तो वो उसकी जो एंट्रेंस है वो विलफुली है, वो खुद वहां पे आई थी 18 जुलाई को, और इसी के साथ जो हम आगे वीडियोस चलाएंगे उसके अंदर देखा जा सकता है कि उसको कैसे बाय फोर्स हॉस्टेज बनाया गया उस घर के अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी वीडियो नंबर 2 चलाएं। थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो नंबर 2 है कि जो क्लियरली बता रही है 19 जुलाई रात 2:35 पर लड़की ने जाने की कोशिश की, विक्टिम ने जाने की कोशिश की, जिसे एक्यूज असलम बेग ने फोर्सफुली वो से फिर से अंदर घर की तरफ ले जाता है और उसे बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करता। मैं वीडियो नंबर 3 की गुजारिश करता हूँ, चलाएंगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो नंबर 3 के अंदर आपको 2 शख्स नजर आ रहे होंगे, बल्कि सॉरी 3 नजर आ रहे होंगे। एक एक्यूज विक्टिम एंड थर्ड वन इज द सिक्योरिटी इंचार्ज, जो कि हमने एज ए एविडेंस विटनेस पेश किया। उसकी जैसे कि स्टेटमेंट के अंदर आपने सुना कि 20 जुलाई को जो विक्टिम थी जोया महमूद, उसने बाहर भागने की कोशिश की, टेरेस से छलांग लगाने की कोशिश की। हम आपको छलांग की वीडियो दिखाते हैं जो हमने स्टेटमेंट के अंदर भी विटनेस की स्टेटमेंट के कि उसने उसको पकड़ के कैबिन के अंदर बंद किया और उसी दौरान एक्यूज वहां पे पहुंचा और फिर से वो उसको पकड़ के खींच के ऊपर ले गया। तो जो अबेटमेंट का सीन था जो हमने एक सुल्तानी गवाह पेश किया, एग्जैक्टली दैट इज द सेम थिंग कि उसने उसको वहां पे सिर्फ कन्फाइनमेंट की हद तक वहां पे उसने हेल्प आउट किया अपने जो उसका मालिक है घर का, जो एक्यूज है असलम पे। तो इसलिए अबेटमेंट, तो इसलिए हमने वो हमारा सुल्तानी गवाह है। No, it is, but as we have know the eyewitnesses, so man accused, there are different judgments कि जिसके ऊपर है ये CCTV footage, sorry CCTV footage आपने दिखाई है। तो इसमें जो है वो जो इंचार्ज, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, don't you think so that he was involved in all that? मैं तो कोर्ट के सामने पहले भी कह चुका हूँ, he was involved not in the murder, बट उस कन्फाइनमेंट के अंदर उसका जरूर रोल है अबेटमेंट की हद तक। लेकिन हमने उसको एज ए सुल्तानी गवाह, क्योंकि हमारा जो मेन एक्यूज्ड है जिसको हमने हम जिसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट है, वो मेन एक्यूज जो है, मेन जो वर्डिक्ट है, वो हम नहीं चाहते कि जो मरकजी मुलजिम है वो कोर्ट से बच निकले, बिकॉज वी हैव नो आई विटनेसेस। मैंने पहले भी कहा हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जो कि प्रॉपरली एडमिसिबल हैं। ये नहीं है कि कोई हमारे पास आई विटनेसेस नहीं है तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं ला सकते, हम ला सकते हैं। मैंने आपके सामने पहले केस ला रखे, तो हम उसको एज ए सुल्तानी गवाह पेश कर रहे हैं। वो बिल्कुल उसने ये चीज तस्लीम की है कि वो अपॉइंटमेंट की हद तक वहाँ कन्फाइनमेंट के 7 दिन की हद तक वो उसके साथ मौजूद है। सो मैं चाहूँगा कि जी आप वीडियो नंबर 4 चलाएं। जी वीडियो नंबर 4 क्लियरली इस चीज को ये चीज शो हो रही है कि लड़की वहां पर पहली बात एक चीज के सेटिस्फाई नहीं है। अगर सेटिस्फाई होती तो वो थ्रू दी डोर घर से वैसे भी जा सकती थी, और जो कन्फाइनमेंट है वहां पर 3 दिन उसे बाहर नहीं जाने दे रहे, और जो जिसने मजबूरन वहां खिड़की से और टेरेस से छलांग लगाई है, जो कि क्लियरली शो है सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर। और इसके साथ हमारे पास ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट है सीसीटीवी फुटेज की कि दिस सीसीटीवी फुटेज हैज नो एनी टाइप ऑफ नो एम्बिग्यूटी और टेम्परिंग एंड इज फिट फॉर एनी टाइप ऑफ जुडिशियल और ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। सो दीज आर दी सीसीटीवी फुटेजेस।
of the actual scene कि जो वहाँ पे जो कुछ 3 दिन के अंदर होता रहा है, तो मैं यही हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। First of all, I want to share a case law that is regarding recovery of weapon as a corroborative evidence. Saifullah versus State 1985, SCMR 410 4MD, page number 24. Even otherwise, recovery of weapon of offense is only a corroborative piece of evidence, and in absence of substantive evidence, it is not considered sufficient to hold the accused person guilty of the offense charged. There is one more case law which I want to share, and that is 1985 SCMR 410, page number 25. Likewise, in Saifullah versus State, a 4-member bench of this court held the recovery of a blood-stained knife, the alleged weapon of offense, insufficient for conviction on excluding the testimony of alleged eyewitnesses from consideration and finding the occurrence as an unseen one. I want to share one more case law with the respectable jury. It is on page number 27, Yaqub Shah versus State, PLD 1976, SC 53. Medical evidence by itself does not throw any light on the identity of the offender. Such evidence may confirm the available substantive evidence with regard to certain facts, including seat of the injury, nature of the injury, cause of death, kind of the weapon used in the occurrence, duration between the injuries and the death, and presence of an injured witness or the injured accused at the place of occurrence, but it does not connect the accused with the commission of the offense. अभी इन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर की है, ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सेफ कस्टडी को प्रूव करना है। अब ये यहाँ पर लेके आए हैं वीडियो को विदाउट द ऑथर ऑफ दैट वीडियो। ऑथर कौन है उस वीडियो का? I want to share one case law with the jury, page number 12, section 12(9), Punjab Criminal Prosecution Service Constitution Act 2006. Prosecutor must ensure that no prosecution witness who is necessary to provide the chain of safe custody is left out. Production of these witnesses before the trial court is eventually responsibility of the prosecutor. It is mandatory upon him to perform his functions and exercise his powers fairly, honestly, with due diligence in the public interest and to uphold the justice. ये जो वहां से एविडेंस जो डीवीआर लिया गया था वो किस शख्स ने लिया था इन्होंने वो मेंशन नहीं किया, ना ही उसको एज अ विटनेस इन्होंने पेश किया है कि कोर्ट उसको एग्जामिन करती है, और ना ही सेक्शन 161 के अंदर उसकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। तो ये एक फैब्रिकेटेड पीस ऑफ एविडेंस है जो कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकता। एंड वन मोर थिंग, अगर ये चाहते थे कि उसको इन्वॉल्व करें तो ये उसको यहाँ पर ला सकते थे, लेकिन ऐसा कोई बंदा था ही नहीं, डीवीआर वहां पर मौजूद ही नहीं था कि ये लोग ये कहते कि इसको आप एग्जामिन करें। अगर ऐसा शख्स होता तो ये कोर्ट में उसको पेश करते एज अ विटनेस और हम उसको क्रॉस एग्जामिन करते और कोर्ट उसको एग्जामिन करती, लेकिन ऐसा कोई विटनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सीसीटीवी फुटेज है ही फेक है और फैब्रिकेटेड है। थैंक यू। Don't you think कि इसमें जो इंसान है वो उसमें मेरी ऐसा नहीं है, ऐसा फैब्रिकेटेड है। Objection, Your Honor. I would
जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि वो वीडियो फैब्रिकेटेड है, तो मैं आर्टिकल 119 ऑफ केएस को पढ़ना चाहूंगा कि इससे पहले जब मैंने सीसीटीवी फुटेज पेश की तो आपके ऊपर आपके सामने डॉक्यूमेंट नंबर 11 ऑफ द पंजाब फोरेंसिक व्हिच शोज द ऑथेंटिकेशन ऑफ द सीसीटीवी फुटेज। तो अगर मेरे दोस्त कहते हैं कि ये टेम्पर्ड है तो मैं आर्टिकल 119 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर पढ़ना चाहूंगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on the particular person। कि अगर मेरे ये दोस्त कहते हैं कि जी वो वीडियो टेम्पर्ड है तो उनके पास इस चीज का सबूत भी होना चाहिए, बिकॉज दे आर विशिंग कि ये कोर्ट इस फैक्ट के ऊपर बिलीव करे। इसके साथ मैं एक चीज और चाहूंगा, the judgment petition number 147 of 2016 given by the Sayyid Mansoor Ali Shah, मैं इसकी एक कॉपी भी आपको सबमिट कराता हूं कि जो बताता है कि जी एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के ओपिनियन की किस हद तक कोर्ट के अंदर एडमिसिबिलिटी है। मेरे दोस्त ने कहा कि जी वो वहां पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आयशा खानम मौजूद है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर आप उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी कराना चाहें। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आई डोंट नो कि वो क्या कहेंगे, लेकिन मुझे इस कोर्ट को पता है, अगर काबिल दोस्त थोड़ा कुछ पढ़ के आते तो वो ये ना कहते कि जी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नहीं है। मैं सिर्फ अदालत से 1 मिनट को रुकवा चाहूंगा ताकि मैं उस जजमेंट की कॉपी आपको दे दूं। प्रोसीड, थैंक यू सो मच। तो दिस इज द जजमेंट क्रिमिनल पिटीशन नंबर 742L ऑफ 2019 of the Supreme Court given by the Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, on the page number 5 of the judgment, मैं उसका मतलब जरूर पढ़ना चाहूंगा, which shows in the paragraph number 5, the opinion of investigating officer not as admissible. The opinion of a police officer who is investigating the case as to guilt or innocence of an accused person is not a relevant fact and is therefore not admissible under Kanuni Shahadat Order 1984, as he is not an expert within the meaning of that term as used in Article 59 of the Kanuni Shahadat Order. Even the criminal procedure doesn't authorize him to form such an opinion or any type of conclusion on the case. To determine guilt or innocence of an accused person alleged to be involved in commission of an offence is a judicial function that can only be performed by the court of law. This judicial function cannot be delegated to police officer investigating the case. तो मैं इसकी जजमेंट आपको देना चाहूँगा on the page number 5 and the paragraph number 1. थैंक यू सो मच यूर। तो सबसे पहले जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की टेम्पलेट का कहा, मैं जो कि आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाया 119 ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर, मैं चाहूंगा कि मेरे काबिल दोस्त इस पर वजाहत दें और अगर कोई ऐसी आपके पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है तो कानूनी अदालत के सामने पेश कीजिए। शुक्रिया। आई गेस प्रोसिक्यूशन काउंसिल जो है ये सुनती कम है और बोलती ज्यादा है। इन्होंने फोकस किया बस हमने बोलना है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि वो रिपोर्ट गलत हो सकती है, नहीं हो सकती, उसकी बात ही नहीं आ रही। मैंने बात की है सेफ कस्टडी की, कि वहां से जहां पर ये सारा हुआ था क्राइम सीन, वहां से लेके पुलिस स्टेशन तक कैसे वो वेपन्स पहुंचे और उसके बाद पुलिस स्टेशन से फोरेंसिक लैब में वो कैसे पहुंचे और डीवीआर किसने उतारा, कौन उसको लेकर गया, ये सब चीजें तो एक तफसीलाते गवाहान जो है इनमें तो लिखे ही कोई नहीं है। इन्होंने 2 गवाहान दर्ज किए हुए हैं, इसमें ऐसा कोई ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर है पुलिस का और ना ही पुलिस का वो शख्स है जो कि फिंगरप्रिंट्स लेता है, कोई ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि सेफ कस्टडी थी? वो तो किसी की भी रिपोर्ट हो सकती है उठा, किसी की भी वीडियो हो सकती है जो आप लगा सकते हैं। ये सारी फैब्रिकेशन है, इसका केस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। जी
अच्छा, एक चीज मैं काबिल दोस्त के उसमें लाना चाहूंगा कि यहाँ हमारा बोलने का ही काम होता है, बोलने के अलावा चुप रह नहीं सकते, इशारों में बात नहीं कर सकते। तो इसके साथ जब these are the assumptions your honor, these are the assumptions कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, I have the proof submitted to you and the safe custody the memos of recovery are in front of you. Here is the investigating officer. अब पहली बात तो मैंने कहा कि पहले तो एडमिसिबल नहीं है, इससे पहले मेरे दोस्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यहाँ पे बुलाते, उनसे क्वेश्चनिंग करते, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है डॉक्यूमेंट 11 के ऊपर कि वो ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट और उसके साथ साथ वो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं कि कब रिसीव हुई, कैसे रिसीव हुई, सब उसके अंदर उस लेटर के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ जो उसका लेबल्ड है सीसीटीवी फुटेज का, वो भी आपके सामने पेश है। तो एंड मैं दोस्त के सामने एक चीज लाना चाहूंगा, जो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी है वो ऐसे ही किसी को ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट जारी नहीं कर देती, वो अदालत का आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी रिपोर्ट एडमिसिबल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो लेटर है वो फैब्रिकेटेड है या उसमें जो टेम्परिंग आपने पहले भी कहा और आप अब भी कर रहे हैं, और अगर उसको आप टेम्परिंग उसकी नहीं कहते तो आपके पास कोई फैक्ट होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। मैं सबसे पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि क्या आप ये जो मैं इसके बाद आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर मुझे गवाही मुझे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहे तो मैं उसे स्टेटमेंट भी आप रिकॉर्ड करें, उसे क्वेश्चनिंग की परमिशन भी चाहूँगा अगर वो कॉन्सेंट देता है, बिकॉज दिस इज आवर राइट, अगर उसकी कॉन्सेंट मिल जाती है। तो इसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कंप्लेनेंट का वहाँ पर पहुँचना, पुलिस का वहाँ पर पहुँचना, और जो 3 लोग हैं जो कि एज अ विटनेस मैंने एक को पेश भी किया आपके सामने, और एक जो थ्रॉपी वर्कर है, एक उसकी कुलीग है, उसका वहाँ पे पहुँचना, ये सारे सर्कमस्टांसेस इस चीज़ की तरफ लीड करते हैं। और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर तो ये कुछ था तो वहाँ से अगर तो वहाँ पे उसका कत्ल नहीं हो रहा तो वहाँ पे उसके घर उसकी डेड बॉडी क्या कर रही थी, वहाँ पे वो एक्यूज क्या कर रहा था, उसने गवाह नंबर 1 ईशा तारिक उसकी पुलिस को क्यों बुलाया और पुलिस वहाँ पर कैसे पहुंची और ये सारे मेमोज ऑफ रिकवरी कैसे वहाँ पर हुए। तो मेरे काबिल दोस्त सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस के ऊपर रह रहे हैं। अगर आप सबसे पहले मैं इनसे ये कहूँगा कि ये डिनाई करें कि जी एक्यूज बॉडी ऑफ एक्यूज मेमोज ऑफ रिकवरी और वहाँ पर पुलिस का पहुंचना, सिक्योरिटी इंचार्ज का डिनाइल, जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो एक चीज साबित हो गई थी कि ये सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ पे काम कर रहा था, जो कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जो लीड करते हैं इस चीज के ऊपर कि वहाँ पर जोया का कत्ल हुआ था और मुझे ये कत्ल किया है, क्योंकि मुझे के अलावा उन कमरों में और उस घर में कोई भी नहीं था। थैंक यू सो मच। आई विश के प्रोसिक्यूशन काउंसिल थोड़े से रूल्स दे के आती कि सीसीटीवी फुटेज को एग्जिबिट कोर्ट में कैसे करवाया जाता है। इसको एग्जिबिट करवाने के लिए आपको पहले जो ऑथर होता है उसको प्रेजेंट करना होता है। ये कहते हैं कि हमारा काम बोलना होता है, लेकिन बोलने के साथ साथ सुनना भी होता है। मैंने बोला है कि आपने कस्टडी को उसके बगैर आप कैसे कोर्ट में आके एग्जिबिट करा सकते हैं वो सीसीटीवी फुटेज, या कैसे वो रिपोर्ट आप एग्जिबिट करा सकते हैं। ये सारा कुछ एक झूठ का पलंदा है। अब जरा केस को शुरू से देखते हैं, स्टार्ट से। सबसे पहले इन्होंने विटनेस पेश किया जो कि वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज था। अब उससे पूछा गया कि वो लड़की कब आई है, वो कहता है 18 तारीख को आई है, जबकि एफआईआर में लड़की के वालिद कह रहे हैं कि जब मैं सुबह बकरा लेने के लिए गया, जब वापस आया शाम को, तो मेरी बेटी घर में नहीं थी। इसका मतलब है कि 19 तारीख को सुबह वो लड़की घर में मौजूद थी, इसलिए उसके वालिद ने बोला कि जब मैं वापस आया हूं तो वो लड़की मौजूद नहीं थी। अब यहाँ पर जो विटनेस था उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि लड़की को 2 दिन के लिए उसने कैप्टिव करके रखा, अपने घर में बंद करके रखा। लेकिन अगर देखा जाए 19 तारीख को अगर वो घर से जाती है तो 19 से लेकर 20 तक 1 दिन बनता है। तो यहाँ से साबित होता है कि जो विटनेस है वो झूठा है। He was lying in the court of law. And second witness was she was the therapy worker and she was the police officer. कंप्लेनेंट ने अपनी स्टेटमेंट में ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो लड़की 19 जुलाई को वहां से निकली थी।
लड़की की मिसिंग का उन्हें पता 19 जुलाई को लगा था, जो कि एफआईआर के अंदर मैच है, और एफआईआर के अंदर 18 तारीख का स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड ही नहीं कराया। तो आप पहले तो ये इसको थोड़ा अगर विटनेसेस का आप सुन लेते तो उसने ये कहीं जिक्र नहीं किया कि कब और वो कहाँ पे नहीं थी, क्योंकि आपने उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी नहीं। उसकी जो स्टेटमेंट है वो सामने मौजूद है, जो कंप्लेनेंट है, सॉरी विटनेस मैं कह रहा हूँ, उसकी जो कंप्लेंट है वो जजेस के सामने मौजूद है कि जहाँ पर 19 का जिक्र है। लेकिन कंप्लेनेंट ने ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया कि 18 जुलाई को वो घर पे थी या नहीं थी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन उससे हुआ भी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लेनेंट ने कहा कि जी वो 2 दिन से वहां पर कैप्टिव थी। कंप्लेनेंट को तो ये चीज पता ही नहीं लगी। ये चीज पता लगती है आपके सीसीटीवी फुटेज से, या जो एविडेंसेस हैं या जो विटनेस है उनकी तरफ से पता लगता है कि जी वहां पे क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ थी। आपको सुनने का हौसला दे। बात पहुंचे थे। I must object, Your Honor, कि वो पर्सनल अटैकर है वहाँ पर। पर्सनल अटैक तो दुआ कर रहा था। इन्होंने कहा है कि उसने जो कंप्लेनेंट accused have to come in a witness box or not? You are going to present that person or not? You have to cross-examine him. No. जी अगर वो इसको अलाउ करेंगे तो मैं चाहूंगा कि वो अलाउ करें कि जो उस विटनेस को अलाउ करें। अगर वो उनकी कॉन्सेंट है तो हम बिल्कुल उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे उससे। 342 CRPC ये जो एक्यूज्ड है उसको ये देता है इम्यूनिटी कि वो अगर चाहता है तो वो नहीं आएगा, तो वो नहीं करना चाहता। अच्छा तो मैं केस के Now it's my request to both the prosecution and the defense to sum up. Sure. अच्छा मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि प्रोसिक्यूशन के बिहाफ के ऊपर कि जो एविडेंसेस एंड विटनेसेस आपके सामने पेश किए गए हैं उनमें मेरे काबिल दोस्त कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं निकाल सके। सिर्फ इसके अलावा कि जस्ट ऑन दी जस्ट रिलाइंग ऑन दी बेस्ड ऑन द assumptions कि ये हुआ है, ये हुआ है, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे दोस्त पेश नहीं कर सके कि जिससे साबित होता हो, या कोई भी एक विटनेस या एविडेंस पेश नहीं कर सके कि जिससे कोई रीजनेबल डाउट निकलता हो। तो हमारी कोर्ट से गुजारिश है कि जो विक्टिम फैमिली है, जो जिसका इतना बड़ा लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट किया जाए। और ये सबसे पहले मैं एक चीज भी कहूंगा कि इट्स अ टेस्ट केस फॉर दिस ऑनरेबल कोर्ट कि वो, और मैं आई बिलीव कि ये कोर्ट पूरे मेरिट्स के ऊपर अपना डिसीजन देगी, इस माय बिलीव। इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप 302B के तहत पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट एज ताजीर कन्विक्ट करें एक्यूज को, बिकॉज उसने कत्ल किया है जो हमें एविडेंसेस रखे, और ये एविडेंसेस एंड विटनेसेस अनडिनाइबल हैं, एंड विदाउट any reasonable doubt we have proved in this court. Thank you so much, Your Honor. कंप्लेनेंट ने जो डेट मेंशन की है वो थी 19 जुलाई। अब 19 को वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब मैं वापस आया बगड़ा लेके शाम को, तो वो घर में मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहीं भी 18 की डेट यूज नहीं की। इसका मतलब है कि 18 तारीख को वो लड़की अपने घर में थी, इसीलिए अगर वो 18 को ना थी तो कहते मैं 18 तारीख को फला जगह गया था, मेरी बेटी घर में थी। उन्होंने 19 का वर्ड यूज किया है कि 19 डेट को जब मैं बकरा लेने गया हूँ और वापस आया तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी। जाते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वो घर पे मौजूद नहीं है। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा, तो ये प्रूव करता है कि जो इनका फर्स्ट विटनेस था वो ही वाज लाइंग इन द कोर्ट। उसने बोला कि उसने 2 days कैप्टिव रखा है, इसका तो एक दिन बनता है 19 से 20। और सेकंड जो है उसने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए नहीं देखा, शी वाज नॉट एन आई विटनेस ऑफ दैट। एंड इन एडिशन टू दैट इस केस के अंदर कोई भी आई विटनेस मौजूद नहीं है। कॉरोबोरेटिव जो एविडेंसेस हैं उनको देखा गया है, उनके केस लॉस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और अब मैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में जो एक कोर्ट केस लॉ है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। Before case law, I have a question. Accused कहाँ था उस पे? Accused, he was in house. क्या कर रहे? वो अपने काम कर रहा था। कौन से काम? वैसे ही मतलब कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ। दोस्त कौन से? उसके 2 दोस्त थे, एक
एक वो थेरेपी वर्क्स वाली थी और एक जो विक्टिम है जिसको मर्डर हो गया। अच्छा, थेरेपी वर्क और वो दोनों मिलके मतलब गला काटते हैं। हो सकता है। It means you are saying कि accused was also नहीं, इस डाउट है ना कि किसने किया है, कि एक्यूज जो मेन एक्यूज ने किया या कि थेरेपी वर्क्स वाली ईशा ने किया। जो कि मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि बंदा पहले मर गया, वो बाद में आई है तो नहीं, ऐसे तो कहीं पर भी नहीं वो बाद में आई है। ये तो कहीं पर भी प्रूव इन्होंने नहीं किया कि वो लड़की बाद में आई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का सारा जो होता है फैब्रिकेटेड है। वो तो फिर आपके उसने रोका नहीं कि मेरी दोस्त को ना मारो। उसने रोका होगा। Yes, because no, ये जो प्रूव करना होता है केस को, ये करना होता है प्रोसिक्यूशन में। हमने बस उनको डिफेंड करना है अपने पॉइंट्स पे। ये केस हमने नहीं बिल्ड करना, वो केस लेके आए। हम सेल्फ डिफेंस की प्ली हमने की नहीं है, तो वो ये प्रूव करेंगे कि हमने किया। हमने नहीं प्रूव करना कि हमने नहीं किया। मैं एक परमिशन चाहूंगा काइंडली। अभी दोस्त ने कहा कि जी वो वहाँ पर दो दोस्त मौजूद थे, अगर वो थे तो वो कहाँ पर है? आपने उनको एज ए विटनेस क्यों नहीं पेश किया इस केस के अंदर? दो दोस्त, वही मैंने बात की ना, आप सुनते नहीं है ना। दो दोस्त, एक वो ईशा उसकी जो वो भी उसकी उसकी फ्रेंड है, उसके बाद वो जो जोया महमूद है वो भी उसकी फ्रेंड है, और वो खुद था तीसरा। ये बात हो रही थी। ओके, I want to share a case reference with you. That's page number 29. Muhammad Rahman versus State PLD 1970 SC10. Tariq Pervez versus State 1995 SCMR 1345. If the prosecution fails to discharge its said obligation and there remains a reasonable doubt, not an imaginary or artificial doubt, as to the guilt of the accused person, the benefit of that doubt is to be given to the accused person as of right, not as of concession. In common law, last question है जब भी हम this case, बॉडी जो है वो आप accused के घर से मिली है पुलिस को, and that is quite mentioned in the FIR as well. So how you have to defend this? Because you are going to defend your person accused in this house. accused के घर से नहीं मिली। कहाँ से मिली? क्योंकि ऐसा कोई विटनेस है ही नहीं है जो कि ये बताए कोर्ट को कि उसने देखा है कि बॉडी वहाँ से मिली है। आपने पुलिस चलान पढ़ा होगा। हाँ जी। लेकिन पुलिस चलान की तफसील जो गवाहान है, इसमें कहीं भी कोई ऐसा विटनेस नहीं जिसने देखा हो कि पुलिस वहाँ पर आई थी। और बॉडी कहाँ से मिली फिर? बॉडी मुझे नहीं पता कहाँ से मिली, तो वो बताए कहाँ से मिली। देखिए जो दो विटनेसेस पेश किए वो ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि पुलिस चलान में जो लिखा हुआ बॉडी वो गलत लिखा हुआ। हाँ जी, ठीक हो। और जो ईशा आई है, जो विटनेस में की आई है, जिन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया है, मैंने बॉडी देखी है, मुझे कहा गया कि एविडेंस उठाएं, वो आप कह रहे हैं कि वो गलत है। हाँ जी, उसकी एविडेंस यू फेक है ना, रॉन्ग। ईशा की विटनेस ने जो स्टेटमेंट दी है, ईशा नाम की लड़की ने, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो आप कह रहे हैं कि वो रॉन्ग है, गलत है, झूठ है। हाँ ठीक है। और जो मेडिकल एविडेंस प्रोड्यूस किया गया प्रोसिक्यूशन साइड से, जो कहता है कि मर्डर वेपन जो है, जिस नाइफ है, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, उसकी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दी है, वो आप कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट है जो कह रही है कि फिंगरप्रिंट्स हैं नाइफ पे, वो फैब्रिकेटेड। हाँ जी, क्योंकि जो सेफ कस्टडी थी ना, इन्होंने उसको प्रूव करना था कि हमने कैसे उसको कलेक्ट किया, पुलिस ने कैसे उसको पुलिस स्टेशन लेके और वहाँ से पीएफएस से कैसे पहुंचा। ये सेफ कस्टडी की चेन टूट गई है, तो इसलिए वो फैब्रिकेटेड है और वो एडमिसिबल नहीं कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपका आर्गुमेंट ये है कि जो पर्सन्स इन्वॉल्व थे उनमें से ये क्लियर नहीं कि किसने मर्डर किया, हो सकता है कोई भी हो सकता है, एक्यूज लाजमी नहीं कि एक्यूज हो। ठीक। Does prosecution have to say something rather than we have to? जी एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं कंक्लूजन चाहूँगा कि एक तो मेरे काबिल दोस्त बॉडी
की जो रिकवरी है उसको डिनाई कर रहे हैं एक तरफ, और फिर आगे चल के कह रहे हैं कि जी वो वहां पे मिला है तो शायद किसी ने भी कत्ल किया हो। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर तजाद है। अगर तो बॉडी वहां से मिली थी तो फिर ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि कत्ल कोई अगर नहीं थी वहां पर, तो ये कैसे कह सकते हैं कि असलम बे के घर जो है वो 3 लोग थे तो कोई भी वहां से कत्ल कर सकता है। तो पहले तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर तजाद है। मैंने तो ये भी कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहां से बॉडी रिकवर नहीं हुई, हमें नहीं पता कि किसने कत्ल किया है। ये आप लोग कह रहे हो कि उसने किया, कोई भी आपके पास ना तो कोई ऐसी शाहिद है वहां पर, ना आई विटनेस है जिसने देखा हो, ना आपके पास कोई पुलिस के लोग हैं। आप पुलिस के गवाहान बीच में ऐड कर लेते हैं जो कि बताते हैं कि हमने देखा, ना कोई पुलिस वाला, ना आईओ, ना इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो हो गया, और साथ ना कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी गवाहान में है ही नहीं है। ये सारा केस झूठ पे मबनी है, इससे कोई फैक्ट्स नहीं। इसलिए करूँगा क्योंकि जो एविडेंसेस, जो विटनेसेस हमने पेश किए हैं वो बिल्कुल जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमने किए हैं। और इसके अलावा जब कह रहे हैं कि पुलिस का कोई स्टेटमेंट, तो पुलिस की स्टेटमेंट एडमिसिबल है भी नहीं पहले, तो हम उसको एज अ विटनेस तो पेश कर नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको एज अ विटनेस नहीं लिया है। जो 2 न्यूट्रल विटनेसेस हैं, जिसको एक सुल्तानी गवाह है और एक न्यूट्रल विटनेस है ईशा, तो उसको हमने पेश किया, सीसीटीवी फुटेजेस हमने पेश की। तो मैं इस चीज़ को सबक करता हूँ कि 302B की सजा दी जाए एज तासीर, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एज तासीर। थैंक यू सो मच। आपकी स्टेटमेंट जो है उसके अंदर उसके पेरेंट्स का भी जिक्र है, but both the sides have not discussed this. Parents were aware of the intention of the murder. No, they were not aware. They were not aware. ये सिर्फ ना एक इन्होंने स्टोरी बनाने की कोशिश की है कि इनके पास This सीडीआर की story रिपोर्ट is ही नहीं given to you basically. This statement which you have mentioned in your memo. It was presented from that side, prosecution side. तो वहाँ पर सीडीआर की रिपोर्ट साथ कोई नहीं अटैच, इनको कैसे पता चला उसने कांटेक्ट किया या नहीं किया, या कौन सा ऐसा इन्होंने गवाह पेश किया जो बताता हो कि वाकई वो इन्वॉल्व थे बीच में या नहीं थे। आपने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सिक्योरिटी ऑर्डर मींस उससे आपने ये पूछा कि आप 18 को आप मौजूद थे कि नहीं, लेकिन आपने उससे ये नहीं पूछा कि 20 को आपने 20 जो है ईशा उसको वेटिंग में आते हुए देखा या नहीं देखा, या फिर जो मर्डर हुई है उनको आपने जाते हुए देखा या नहीं देखा। ये आपने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कोशिश नहीं की, ये करना चाहिए। हाँ जी, और ये इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर वो लाइक आ गया था, वो झूठ बोल रहा था, वो कह रहा था कि 2 दिन उसने उसको बंद करके रखा है, जबकि अगर हम FIR को देखते हैं तो 19 की रेट है, 19 से 20 में तो 1 दिन बन जाता है, तो इसलिए उसकी वो जो भी बोलता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसके बयान की। So एक चीज पे और एग्री करते हैं कि जोया आई थी उस दिन वहाँ। वहाँ पर आई थी कुछ देर के लिए, उस देर के लिए। हाँ, On the 19th. और 20 को जो है वो वहाँ से बॉडी निकल गई। बॉडी कोई ऐसा विटनेस है जिसने देखा हो कि वहाँ पर बॉडी निकली है नहीं। प्रोसिक्यूशन से क्वेश्चन मैंने जो आपने वहाँ से बरामद की है वो आपने चेक किया कि क्या वो मर्डरर जो जिसका आपने एक्यूज है उसके नाम पे रजिस्टर्ड है नहीं, इसका कोई वो नहीं है कि रजिस्टर्ड है नहीं है, लेकिन जय बकुआ से वो गन मिली है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स, जैसे कि मैं एक चीज जो कह रहे हैं कि जो विटनेस नहीं है, तो ये विटनेसेस ही हैं कि जिन्होंने कहा कि हमने बॉडी उस कमरे के अंदर वहां पर देखी थी और जहां पर एक्यूज भी था। तो एक तरफ ये डिनाई कर रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी कोई विटनेस नहीं है। तो अगर तो विटनेस हमारा जो जैसा कि इन्होंने कहा ये बात बोल कि अगर विटनेस ने झूठ बोला तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उनको साबित करना चाहिए था। इन्होंने कोई चीज़ क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर साबित इस तरह से नहीं हुई। तो हमारी तरफ से यही आर्गूमेंट्स हैं जो फाइनल है, हमने सबमिशन कराई है। तो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच। जो डिफेंस ने कहा है कि FIR के अंदर जो डेट बताई गई है वो 19 बताई गई है, 18 को वो डिनाई कर रहे हैं, उस पर आपका कोई कमेंट है? जी इस पे एक कमेंट है। अगर मेरे मोकल ने जो हमारा कंप्लेनेंट है
उसने कहीं पे भी अपनी गवाही के अंदर ये नहीं कहा कि जोया 19 को निकली थी या 18 को। जो FIR है वो 19 का इसलिए है कि वो बात उसकी नोटिस में 19 को आई, बिकॉज ही इज द फॉरवर्ड डिप्लोमेट। वो और जो इस्लामाबाद का एरिया है, आपको पता है वहाँ पे लोग निकलते हैं या जो कि नॉर्मली होता है। अब ये तो नहीं होता कि अगर कोई भी फीमेल या मेल घर से बाहर जा रही है तो उसे ये पूछा जाए कि कहाँ जा रही है, लेकिन जब एक टाइम गुजर गया उनको उसकी प्रेजेंस का अंदाजा हुआ कि वो वहाँ पर नहीं, एब्सेंस का आइडिया हुआ, तब उन्होंने जाके उसको छापी। लेकिन फिर से एक कॉल आती है असलम बे की कि जिसमें उसने कहा कि जी जोया मेरे साथ नहीं है। तो वो परेशान हुए कि जो स्टडी सर्कल है, जो उनका सर्कल है, ग्रुप सर्कल है, जो उसके अलावा जो उसने कॉल करने से पहले कॉल की जोया ने कि जी मैं इन दोस्तों के साथ हूँ, जो कि हम कह रहे हैं कि वहाँ पे वो विलफुली नहीं थी। तो एक तरफ से ये ना डिनाई कर पा रहे हैं और ना ही जो है ये कॉल आई थी कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर नहीं, लाहौर नहीं गई थी, दोस्तों के साथ। जी दोस्तों के साथ। किस डेट को आई? सॉरी कहाँ पे बात? ये कॉल 19 की डेट को आई थी। जब वो रंगरेज से वापस आया, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने कुछ सर्च आउट किया, तो वहाँ पे जो है पहले उन्होंने दोस्तों से रब्ता किया, तो वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, तो उसी के साथ ही जो है कि 19 को कॉल आई थी और 20 को ये सारी जो जाए वकूफ हुआ है। वही बात है कि अगर तो 18 को वो घर पे ना होती तो वो 18 का जिक्र करती। घर में इतने लोग होते हैं, उसके फादर थे, उसकी सिस्टर थी, उसका ब्रदर था, कोई तो नोटिस करता कि 18 को वो नहीं है। 18 को वो घर ही थी, 19 को वो घर में नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने वो रिपोर्ट भी किया कि 19 की डेट को। अगर वो वरना FIR में कहते थे कि मैं 18 को मैं घर में देखा, मैंने मेरी बेटी घर नहीं थी, जबकि 19 को सुबह उन्होंने अपनी बेटी को देखा, इसीलिए उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। If you rely so much on the FIR, तो फिर तो FIR में ये भी लिखा हुआ है कि वो गए हैं असलम के घर और वहाँ पे जो है वो बॉडी रिकवर। नहीं, असलम के घर में वो गए होंगे, ठीक है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है ना कि वहाँ से बॉडी रिकवर हुई है। ये FIR भी, ये भी मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं FIR में बता रहा था कि जो उन्होंने डेट मेंशन की है उसको, लेकिन जो लास्ट टाइम की आप बात कर रही हैं वो ये है कि वहाँ से बॉडी निकली थी, लेकिन इन्होंने कोई आई विटनेस पेश नहीं किया। आई विटनेस के बगैर तो नहीं हम मानेंगे कि वाकई या कोई भी विटनेस हो जाता वहाँ पर जिसने देखा होता कि बॉडी वहाँ से बरामद हुई है या पुलिस आई है। कितने लोग आगे सिविलियंस रहते हैं, राइट लेफ्ट पे कोई और लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, किसी को बुला लेते एज अ वो विटनेस या गवाह के आपने देखा है कि हम यहाँ से बॉडी रिकवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चांस। इसलिए मुझे कोई इसमें एविडेंसेस और रात का टाइम था तो ये नहीं हो सकता कि साथ वाले Thank you. Thank you. Before the jury members of now during their declaration, strong law for the teams. This is not to demoralize or not to encourage and not to influence during this deliberation during the jury members. So, basically, overall, the presentation is very nice for both the teams who are prepared here because they are the 6 messages as a faculty member, as a head of the department. I'm not expecting that you are supposed to be familiarized with all the आपने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे इन कॉलेज में जो existing knowledge, जो keeping in view your existing knowledge, your whatever studies of law, you have prepared very well, very well. I really appreciate you. Secondly, your prosecution के defense side, जो दोनों का जो केस लॉ के हवाले से जब मैं बात करूँगा, तो केस लॉ की जो presentation है, the way you are presenting, although at this point I'm not expecting that you should be presenting in a very professional style, but that was not particularly जो in practice choosing होती है. So try to learn those things from the faculty members, जो भी faculty members आते हैं. इस तरह केस लॉ की presentation करने का काम क्या होता है, how you cite the case law.
Secondly, during this cross-examination or जो वो करा के आपस में बहस चल रही थी, I was observing that there was like, okay, you are playing like a drama play कर रहे हैं, but do not taunt something. So there was some use of vocabulary कि इन्होंने शायद सुना नहीं है, इनका काम बोलना होता है, इनका काम बोलना होता है, इनका काम सुनना होता है. So do not use these words. These words are just used in the movies. जैसे movies की हद तक, ड्रामों की हद तक होते हैं, but in the actual practice में one वकील speaks, the other वकील listens. They listen patiently, they speak bluntly. जो भी उन्होंने बात करनी है वो क्लास साहबान ने वो बड़े तसल्सल से एक धीमे अंदाज से बात करते हैं. You are not supposed to like directly in आप जब भी बात करते हैं तो do not offend the court. I could see something कि कुछ words का इस्तेमाल हुआ कि भाई इन्होंने सुना नहीं, वकील का काम बोलना होता है और वकील का काम सुनना होता है, या आप मुशरिक को पहले बोल नहीं है फिर आप बोलने दें. So do not use these words. You are not talking about the case out of the court. This was in the court. So the jury members are there to try to follow the dignity of the court as well. Plus जो use of legal terms है, I was sure भाई कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होना चाहिए. Although I believe कि 90% of the vocabulary was used accordingly, but somehow कुछ cases जो हैं like जब आप कहते हैं मैं आपको ये देना चाहूँगा, no, you do not they to the use the word they to the court. Your Honor, I would like to exhibit the document. So try to use the words exhibits. Exhibit number 1, exhibit number 2, or the page number of exhibit number 1, exhibit number 2. So you use those particular words कि जिससे कोर्ट का वक्त टाइम भी ज़ाया ना हो और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोर्ट के सामने विदिन जो है वो कोर्ट की नज़र में आ जाए. फिर जो मेमो की जो बात हो रही थी, तो एक चीज़ जो डिफेंस साइड ने जो बात की कि भाई जो मेमो है वो प्रोसिक्यूशन साइड ने पेश किया है, तो आई वाज थिंकिंग कि भाई वेयर इज योर ओन मेमो. सो ये जिस चीज़ को मैं मेजर फॉल्ट की बात के मानूंगा, जो मेरी ज़ाती राय है, इज नॉट टू इन्फ्लुएंस द जजेस टू डेलिब्रेशन, बट यू शुड हैव प्रिपेयर्ड योर ओन मेमो एज वेल. Secondly, I would really appreciate जो judges के जो questions थे, they were very well versed questions and judges ने very well versed questions. In the end, I really appreciate all the team members जिन्होंने शक्कत को पीछे से बैक किया, उनकी जो होमवर्क है, जो प्रेजेंटेशन मेमो है, you are very awesome. your team members जो पीछे मीडिया के क्वेश्चंस करते हैं, जो सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, they are very awesome. Thank you boys and girls कि आपने very patiently इस चीज़ को सुना. Cross defense side आपकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है. जो भी आपके पीछे होमवर्क है अपनी चीज़ की, वकील साहब और बाकी तासिर प्लीज Mohit Ali and Athar. Athar, your presentation style was very nice. You were very fluent as well. And Mohit, I would suggest that जब भी आप discussions करें, try to be fluent. और के बात ना करें, like उससे आपका अपना confidence shape हो जाता है, जो आपका client होगा वो भी shape हो जाता है, या मेरा वकील को बोलना है. So try to be fluent. आप एक चीज़ practice किया करें, और practice के लिए best option is कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को present करें, तो आपकी चीज़ें भी जो आपके फ्लुएंसी का लेवल है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो अजीज साहब आपको अगर कुछ चीज़ बोलना चाहें तो और मैडम उस्मा खालिद के लिए प्लीज मैं तो फिर आपसे प्रयास करूँ, मैं उम्मत की स्ट्रगल के लिए एक observing the court
कि जजेस ने परफॉर्म किया उनके लिए क्लैरिटी है। और जिस तरीके से केस को प्रेजेंट किया गया दोनों टीमों के लिए मैं खुद भी कोशिश करूंगा और खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि आपको ग्रुप्स की शक्ल में एक्चुअली कोर्ट्स में क्या हो रहा है वहाँ भेज के ऑफिशियली ऑब्जर्व करवाएं कि कोर्ट कैसे परफॉर्म करे। कि हम आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते जो एक मरी विलायत से होती, लेकिन जितनी आपने कोशिश की है, तैयारी की है, वो प्रॉमिस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पता है कि मैं अक्सर एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ अपनी क्लास में, आर्ट ऑफ एडुकेशन। और उसके साथ साथ हम जब पढ़ते हैं तो आप सब पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता है कि देयर आर सम एथिक्स ऑफ एडुकेशन टू, जो कि हमारे प्रोफेशनल जो आपको ये बताते हैं कि आपकी लिमिट्स क्या है, पब्लिक में लिमिट्स क्या है, कोर्स में लिमिट्स क्या है। तो आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो उसका लिमिट्स क्या है, इखलाकियत आपका अपना जो तजुर्बा है किसी इखलाकियात के तहत आपने कहाँ तक अपने आप को मार्केट में ऑनरेबल थी। देखिए ये पेशा ऑनरेबल प्रोफेशन है, इसकी ऑनर आपके अपने हाथ में। अगर आप एक क्लाइंट की खातर अपने भाई बहन अपने जिसको पेटी बाजी हम कहते हैं, अगर उसके साथ आप इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो बेटा वो ना आपके लिए बेहतर है, ना आपकी रेपुटेशन के लिए बेहतर है, ना आपके प्रोफेशन के लिए बेहतर है। इसलिए जब भी आप एक दूसरे को मुखातब करें तो आपको फाजुल दोस्त के अल्फाज इस्तेमाल करें, लर्नेड फ्रेंड के अल्फाज इस्तेमाल करें। तो फिर जब आप कोर्ट को एड्रेस करते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंट करते हुए आपका जो अदब है कोर्ट का और आपका जो तलक है वो एक अदब का तलक है। यू आर देयर टू असिस्ट एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिशियली आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, ठीक है, क्लाइंट आपका जरूर है, लेकिन क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू बिकम योर ओन सेल्फ एन अक्यूज, जो अक्यूज नहीं है। आपके एटीट्यूड में, आपके प्रेजेंटेशन में ये साबित है कि आप खुद अक्यूज है, आप अक्यूज नहीं है। तो इसी तरह बेटा ये कुछ प्रोसीजरल बातें थी जो हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे आपको वो प्रॉपर तरीका बता देंगे जिसको मैं इनरेगुलरिटी और प्रोसीजर के जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है उससे हट के जो उसको मैं आपको ब्लेम भी कर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आइंदा इसमें आप उसको बेहतर तरीके से आप अपनी तरह जारी रखें। इंशाअल्लाह मुझे ये यकीन है कि आप झंडा गाड़ देंगे। Thank you so much, sir. Now I would request our honorable judges for today's event to please speak the decision. दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट सुनने के बाद और इस डिसीजन पर पहुंचती है कि सारे एविडेंस पेश करने के बावजूद डिफेंडेंट ने केस के अंदर डेट को लेके और रिकवरी ऑफ बॉडी को लेके डाउट क्रिएट करने में वो सक्सेसफुल रही थी। और जो पुलिस रिपोर्ट के बारे में कहा गया, पुलिस रिपोर्ट चलान के अंदर जबकि लिखा हुआ है बॉडी रिकवर हुई थी, लेकिन ये ओपिनियन है उन्होंने केस लॉस कर दिया, ठीक है। और मज़ीद ये कि जो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन और अपनी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की थी उसके अंदर आपने डाउट सही तरह रिमूव नहीं किया था रिगार्डिंग द फैक्ट्स। तो moreover, when we talk about section 164, though it allows all kind of evidences, इसमें
CCTV भी आ जाती है. But what they were saying is also right. जब आप ऐसी कोई चीज़ को पेश करते हैं तो इसका जो ऑथर होता है, जिसने CCTV फुटेज बनाई होती है, जिसने आपको पेश किया, you have to present that person in the court as well. इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ आपको मिल जाती हैं जो इस चीज़ को ये कहती हैं कि आप जो वो आपकी ना वैल्यू तब बनती है उसकी. So rules were not followed regarding this as well. So and we also don't know from where the body was found because there is a lot of the controversy in that. So हम further inquiry का बोलेंगे कि इसके ऊपर further inquiry हो and you guys come again and then come with this. We go with it. The court is adjourned. Thank you very much. Thank you very much. Technically speaking, even I was not thinking in this way that the case is up for the inquiry. Very nice to see him, and that is, I think, going to be used next Friday again, telephone. The next day of the hearing is next Friday. Thank you very much, and thank you very much, Climate Change. Thank you.